Hello students, in our last session of demand, we earlier understood the different concept related to demand, and in that we studied the joint demand means an individual demand. Okay, now here one specific concept we are trying to understand, and that is the elasticity of demand. So what is the exact sense or meaning of elasticity? Have you seen a rubber band? When you stretch it, what has happened? Okay, it extends, and when you release it, it has shrunk. Similarly, demand is also stretched or shrink, and that phenomena is called the elasticity. Now, which factors are responsible for that? So, three factors are responsible. First responsible factor to elasticity of demand is the price. Second, the income, and third, the others, means the substitute effect or any other effect. Here we will try to understand how demand is elastic when price influence it. जब प्राइस उसके ऊपर असर डालती है तो डिमांड किस तरह से इलास्टिक होती है, यानी खींचती है या कम होती है. ओके, here I have drawn different graphs related to it. Okay, and like this way I have shown the elasticity and inelasticity. Elasticity का मतलब होता है stretch हो जाना. Okay, and inelasticity का मतलब होता है shrink हो जाना. बेलोच, लोचदार and बेलोचदार, like that way words are there in Hindi. Okay, so talk about first perfectly elastic. Before that, in your text, certain concepts are mentioned related to demand. Let's we talk about it. पहले उसके बारे में बात करते हैं. So it is saying the meaning of price elasticity of demand. So price elasticity of demand shows the proportion to which demand change with price. मैंने शुरू में ही बोला price elasticity of demand का मतलब ये होता है कि जिस प्रपोर्शन में प्राइस बदलेगी उस प्रपोर्शन में डिमांड में क्या फर्क पड़ रहा है. ओके, सो इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड अपॉन प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस. इज इट क्लियर? सपोज वन एग्जांपल इज गिवन इन योर टेक्स्ट, पेज नंबर 28, अपर पैराग्राफ. इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस, इट इज सेइंग दैट इफ 1% फॉल इन प्राइस, 1% भाव घटने से, if demand has rise to 5%, then what will be the elasticity? अब डिमांड आपकी कम हो रही है तो आप इसको ऑलवेज आप क्या करोगे, सॉरी प्राइस आपकी कम करिए तो यू विल शो इट इन नेगेटिव वे. सो परफेक्ट चेंज ऑफ डिमांड फॉर कमोडिटी एक्स अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स, सो +5 अपॉन -1, सो इट्स एक्चुअली नेगेटिव वैल्यू. +5 upon -1, this price indicate 5 is indicate the demand and 1 is indicate the price. तो इसकी वजह से डिमांड कितनी हो गई, because we always show it in positive not negative. Okay, so ये जो है आपकी 5 हो गई. So price elasticity of demand is expressed as a pure number, means absolute value. We never show it negatively. It is not a pure number and it is not associated with any measurement. Okay, now the definition is given, and this concept was introduced by Marshall. According to Marshall, the degree of elasticity of demand depend on the extent of rise in determined
because on the fall in price and upon the extent fall in demand because of rise in price। तो प्राइस के घटने या प्राइस के बढ़ने की वजह से डिमांड में जो ट्रेंड में जो चेंज आता है, अब डिमांड बढ़ भी सकती है, डिमांड घट भी सकती है, सो दैट इज कॉल्ड द इलास्टिसिटी व्हिच आई अर्लियर एक्सप्लेन्ड यू। इज इट क्लियर? ओके, दिस इज द डेफिनेशन। नाउ एज पर द डिग्री इट इज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट। ये 5 भागों में बांटा हुआ है। सबसे पहला है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ओके, देखो यहाँ पे प्राइस इज कांस्टेंट, प्राइस में कोई फर्क नहीं है, लेकिन सेम प्राइस पे समझो यहाँ पे प्राइस आप यूं 10 रुपए है और डिमांड देखो नॉन स्टॉप बढ़ती जा रही है अलग अलग पॉइंट में। मीन्स प्राइस के न बदलने पर अगर डिमांड बहुत जबरदस्त तरीके से रैपिडली बढ़ती है, then that is called perfectly elastic demand and here elasticity of price is infinity। उसका कोई अंत आता नहीं है, नॉन स्टॉप बढ़ती चली जाती है और ग्राफ उसका इस तरह से आता है। सेकंड, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। अच्छा, अब यहां पे देखो प्राइस चाहे कितनी भी बढ़ जाए या प्राइस कितनी भी घट जाए, डिमांड में कोई फर्क पड़ता नहीं है। वहां पे उल्टा था, वहां पे प्राइस कांस्टेंट थी, डिमांड बढ़ रहा था। यहाँ पे जो है डिमांड कांस्टेंट है, प्राइस घट रही है बढ़ रही है, डिमांड को कोई फर्क पड़ता नहीं है। ओके, एंड दिस इज कॉल्ड योर परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड एंड हियर इलास्टिक ऑफ प्राइस इज इक्वल टू 0। ओके, आप यूं भी लो कि डिमांड में 0, डिमांड में कोई परिवर्तन नहीं है, बराबर है, डिमांड एज यूजुअल है, प्राइस आपकी चेंज हो रही है, सो इट इज और इन दिस कंडीशन your this graph line will be parallel to y axis and here the line parallel to x axis। third one, unitary elastic demand। जितने प्रपोर्शन में प्राइस चेंज होगा बढ़ेगा या घटेगा, वाइस वर्सा, सेम प्रपोर्शन में डिमांड बढ़ेगी या घटेगी। अगर 2 यूनिट प्राइस राइज हो रहा है तो डिमांड भी 2 यूनिट बढ़ेगी और अगर 2 यूनिट प्राइस घट रही है तो डिमांड भी जो है 2 यूनिट बढ़ जाएगी। ओके, एंड दैट इज कॉल्ड द यूनिटरी इलास्टिक। एंड यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल रखा है कि समझो प्राइस जो है 100 यूनिट बढ़ गई, बराबर है, तो डिमांड 100 यूनिट घट जाएगी और वाइस वर्सा। प्राइस 100 यूनिट घट गई तो डिमांड 100 यूनिट बढ़ जाएगी। एंड इन दिस कंडीशन यू विल कैंसिल दिस, elasticity of demand is equal to 1। elasticity is equal to 1, but this is the hypothetical condition बच्चों, ये practically possible नहीं है। and in that condition ये जो कर्व है ये x and y एक्सेस के साथ exactly 45 डिग्री का एंगल बनाता है। मोस्टली दिस कंडीशन इज पॉसिबल इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन। ये एक थियोरेटिकल टॉपिक है, प्रैक्टिकल टॉपिक नहीं है। जब आप आगे 2 चैप्टर आगे और जाओगे तब आपको मार्केट में ये पढ़ने को आएगा। ओके, लेकिन इसका जो है प्रैक्टिकल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है, कभी भी ऐसा होता नहीं है। तो इसका जो है थियोरेटिकल इंपॉर्टेंस है, प्रैक्टिकल कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। नेक्स्ट, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। प्राइस के स्लाइटली घटने या बढ़ने से डिमांड में जबरदस्त उछाल या डिमांड में जबरदस्त गिरावट आ जाती है। मैं दोनों कंडीशन बता रहा हूँ। प्राइस अगर बढ़ जाएगी तो डिमांड में जबरदस्त घटाड़ा होगा, बराबर, और प्राइस अगर जबरदस्त गिर जाएगी तो डिमांड जबरदस्त बढ़ जाएगी। मतलब स्लाइटली चेंज इन प्राइस, डिमांड इंक्रीज ट्रेमेंडसली, जबरदस्त तरीके से डिमांड बढ़ जाती है या घट जाती है। So that is called the relative elastic demand। मतलब यहाँ पे देखो प्राइस सिर्फ 100 रुपीज कम हुई तो डिमांड देखो 300 जितनी बढ़ गई। अब आप इसको कैंसिल करते हो तो दिस 3 इज इक्वल टू 1 ग्रेटर देन 1, तो इलास्टिसिटी ये 1 से ज्यादा हुई। नेक्स्ट, रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड।
अब प्राइस में ट्रमेंडस चेंज आता है, बट कंपेयर दैट डिमांड में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। प्राइस जबरदस्त बढ़े या जबरदस्त घटे, डिमांड स्लाइटली अफेक्ट करती है, बराबर है। सो दैट इज कॉल्ड योर रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। एंड इन दिस सिचुएशन, ओके, मैंने यहाँ पे बताया, देखो यहाँ पे प्राइस 100 बढ़ गई या घट गई। अगर बढ़ गई 100 तो डिमांड 90 रह जाएगी, और अगर आप इसको कैंसिल करते हो यहाँ पे, ये क्या होगा 0.9। अब आप 0.9 देखो, इलास्टिसिटी इज लेसर देन 1, 1 से कम होगी। इज इट क्लियर? एंड दिस इज द 5 पैटर्न। उसके बाद में है आपकी इनकम इलास्टिसिटी। ये तो थी प्राइस इलास्टिसिटी। प्राइस के चेंज होने से इनकम में क्या फर्क पड़ेगा, तो सॉरी डिमांड में क्या फर्क पड़ेगा, बराबर है। लेकिन इनकम के चेंज होने से डिमांड में क्या फर्क पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड इनकम इलास्टिसिटी। उसको हम लोग y से इंडिकेट करते हैं, नॉट बाई i। सो प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड अपॉन प्रोपोर्शनेट चेंज इन इनकम। एंड यहाँ पे भी 3 कंडीशन है, इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 होगी, या फिर इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होगी, या फिर इलास्टिसिटी लेसर देन 1 होगी, विच इज मेंशन इन योर टेक्स्ट। अब हम लोग जरा उसके ऊपर चलते हैं। ओके, एंड दैट इज योर इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, एज अ प्राइस इज कॉज ऑफ चेंज इन डिमांड इज द कंसेप्ट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सिमिलरली, income is the cause of change in demand, as I earlier explained you. This concept of income elasticity of demand, it means income elasticity of demand useful to measure the change in demand for commodity with respect to change in income of a consumer. So income elasticity is what? Proportionate change in demand upon proportionate change in income. Okay, price लेवल में price था, यहाँ पे क्या हो गया income. Okay. Now degree of income elasticity of demand, the positive income elasticity, when demand increase due to the rise in income, income बढ़ने की वजह से अगर डिमांड भी आपकी बढ़ जाती है, ओके, तो कंज्यूमर और डिमांड डिक्रीज ड्यू टू द फॉल इन इनकम ऑफ कंज्यूमर, बराबर है। इनकम बढ़ने से डिमांड बढ़ जाती है और इनकम घटने से डिमांड घट जाती है, सो दैट इज कॉल्ड द पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी। ओके, then such change is demand is known as the positive income elasticity of demand। अब इसके 3 इन लोगों ने इसे कर दिए, यूनिट इनकम इलास्टिसिटी where elasticity is equal to 1 when change in demand and change of income both are equal, that is called the unit income elasticity। Second is elasticity of demand greater than unity when change in demand is proportionally greater than change in income। इनकम में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है लेकिन डिमांड जबरदस्त तरीके से बढ़ गई है, सो दैट इज कॉल्ड द इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1। नेक्स्ट, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन यूनिटी व्हेन चेंज इन डिमांड इज प्रोपोर्शनली लेसर देन चेंज इन इनकम। अब इनकम जबरदस्त बढ़ रही है लेकिन डिमांड में कोई फर्क नहीं पड़ा, डिमांड घट रही है, सो इन दैट कंडीशन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेसर देन 1। ओके, इसके अलावा नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सो विद द राइज इन इनकम, इनकम बढ़ रही है और कंज्यूमर, if demand decrease or with the fall of income, income के घटने से जो है डिमांड में फर्क पड़ रहा है, if demand increase in such elasticity of demand is known as the negative income elasticity of demand। normally some type of inferior goods have negative elasticity of demand, यानी कि जितने भी given goods हैं, inferior goods हैं, वहाँ पे आपको इस टाइप की डिमांड देखने को मिलेगी कि प्राइस राइज होने के बावजूद, बराबर है, आप किसी चीज की डिमांड बिल्कुल कम कर रहे हो जबकि डिमांड बढ़नी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज योर जीरो इनकम इलास्टिसिटी डिमांड विद द चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर इफ डिमांड ऑफ द गुड्स रिमेन अनचेंज। इनकम बढ़ रही है, डिमांड एज यूजुअल है, डिमांड में कोई परिवर्तन नहीं आया, डिमांड उतनी की उतनी है। ओके, such demand is known as the zero income elasticity of demand। Usually this type of demand elasticity can be found the lower price goods like salt, matchbox, pin, etc. Okay, and last is your cross elasticity of demand, rather than income, rather than price, if any।
इफ एनी अदर फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द डिमांड, यानी कि प्राइस और इनकम को छोड़कर कोई और दूसरे फैक्टर इनकम को इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे कि सब्स्टिट्यूट है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, फ्यूचर में प्राइस का बढ़ना है, ओके, पॉपुलेशन डेमोग्राफी का डिस्टर्ब होना है, इनकी वजह से अगर डिमांड में असर पड़ता है, देन दैट इज कॉल्ड द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. Okay, so any goods in economic analysis can be studied the compare and contrast of the substitute and complementary goods. मैंने आपको शुरू में भी बताया. So what is substitute? तो substitute goods means those goods which can be easily used in the place of given another goods. पेप्सी की जगह पे आप कोको कोला यूज कर सकते हो, बराबर है, तो that is the substitute. Complementary goods. Complementary goods are which consumed together, एक साथ में, ओके, जैसे पेंसिल के साथ इरेजर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, नोटबुक के साथ में पेन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, ओके. सो विदाउट अदर, उन दोनों का एक के बिना दूसरे का काम चलेगा नहीं. इन अदर वर्ड देयर मस्ट बी कंज्यूम्ड टुगेदर satisfy the bond. Similarly, car and petrol, bike and petrol, complementary goods. When the demand of the concerned commodity change in response to the change in price in related goods, then extent of such demand is called the cross elasticity. So cross elasticity is percentage change in demand of goods. देखो ये तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा भाई, यहाँ पे चेंज हो जाएगा. प्राइस, अगर यहाँ पे प्राइस किसी की वजह से इन्फ्लुएंस हो रहा है तो प्राइस, इनकम की वजह से डिमांड इन्फ्लुएंस हो रही है तो इनकम, और उसकी जगह पे अगर कुछ और है तो परसेंटेज चेंज ऑफ प्राइस फॉर गुड्स फॉर एनी अदर रीजन. सो मेथड ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी, अब आप कैसे उसको मेजर कर सकते हो, अलग अलग तरीके हैं उसके. आप जब हायर स्टैंडर्ड में आओगे तब इसके ऊपर और ज़्यादा डिस्कशन होगी. यहाँ पे जो है आपको अभी बताने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि आपके सिलेबस को भी रिलेट नहीं कर रहा है, और मैं एक्सप्लेन करूँगा तो आपको इतना ज़्यादा समझ में भी नहीं आएगा. जब आप लोग FI SY में जाओगे तो उस समय में आपको ये और डीप में अंडरस्टैंड होगा. या कोई आप प्रोफेशनल कोर्सेज लोगे देन ऑल्सो इट विल बी कम देयर. द लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्रेस एज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड फॉर गुड्स बट डज नॉट क्लियरली स्पेसिफाई द एक्सटेंट ऑफ चेंज इन डिमांड. बराबर, वो ये तो बता रहा है कि भाई इलास्टिसिटी का मतलब जो है प्राइस और डिमांड के बीच में कितना जो चेंज आएगा उसका प्रोपोर्शन है, लेकिन कितना, हाउ मच, उसको आप कैसे डिटरमाइन करोगे. ओके, सो इफ द 10% चेंज इन प्राइस, ओके, इट इज नॉट गिविंग द आंसर हाउ मच परसेंट विल बी चेंज द डिमांड. This kind of specification is provided by the concept of elasticity of demand. There are various methods of measuring elasticity of demand. The commonly used are method of proportionate change, total outlay method and geometric method. ये अलग अलग तरीके हैं बच्चों जो आपको हायर स्टैंडर्ड में पढ़ने. यहाँ पर इसकी अभी फिलहाल इतनी ज़रूरत नहीं है. We have completed this chapter here and next one we will start जो इसी का एक जुड़वा भाई है, सप्लाई, बिकॉज डिमांड एंड सप्लाई these are the two most component of the market and specific topic in microeconomics. अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं this is the microeconomics. So when in next lecture I will start, at that time we will talk about the supply of goods. हम goods के supply के बारे में बात करेंगे. Okay, now when you will get this video, so during that time श्राद्ध चल रहे होंगे. श्राद्ध मतलब अपने पूर्वजों को कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए किया हुआ कर्म, श्रद्धा से किए हुए कर्म को श्राद्ध कहते हैं. तो ये समय होता है कि जब ऐसा बिलीव करते हैं कि उनका आगमन ये 16 दिनों के लिए इस धरती पर होता है. वो पितृलोक से यहाँ पर धरती पर जो है अपने जो उनके हेयर्स हैं, हेयर्स यानी कि उनके जो खानदान के जो भी लोग हैं उनसे मिलने के लिए आते हैं. तो ड्यूरिंग दैट टाइम उनकी याद में जो है कुछ अच्छा काम किया जाता है. हम और कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम जो है इन दिनों को पवित्रता के साथ में, अच्छाई के साथ में बराबर हम लोग निकालें. यही उनके लिए सबसे बड़ी ट्रिब्यूट होगी. तो श्रद्धा से किया हुआ कर्म दैट इज द श्राद्ध, और सभी के पितृ सबका कल्याण करें, ऐसी प्रार्थना के साथ में आई एम कंप्लीटिंग दिस लेक्चर हियर. And whenever we will meet next, we will start with supply. Bye. See you.